Good morning. Up till now, we have seen fuzzy logic and artificial neural network. Today, we will see genetic algorithm. Now, introduction. After scientists became disillusioned with classical and neoclassical attempts at modeling intelligence, they looked in other directions. Two prominent fields arose: connectionism, that is neural networking, parallel processing, and evolutionary computing. It is the latter that this essay deals with: genetic algorithms and genetic programming. What is GA? A genetic algorithm or GA is a search technique used in computing to find true or approximate solutions to optimizations and search problems. Genetic algorithms are categorized as global search heuristics. Genetic algorithms are a particular class of evolutionary algorithms that use techniques inspired by evolutionary biology, such as inheritance, mutation, selection, and crossover, also called recombination. Genetic algorithms are implemented as a computer simulation in which a population of abstract representations called chromosomes or the genotypes or the genome of candidate solutions called individuals, creatures, or phenotypes to an optimization problem evolves toward better solutions. Traditionally, solutions are represented in binary as strings of zeros and ones, but other encodings are also possible. The evolution usually starts from a population of randomly generated individuals and happens in generations. In each generation, the fitness of every individual in the population is evaluated. Multiple individuals are selected from the current population based on their fitness and modified, that is recombined and possibly mutated to form a new population. The new population is then used in the next iteration of the algorithm. Commonly, the algorithm terminates when either a maximum number of generations has been produced or a satisfactory fitness level has been reached for the population. If the algorithm has terminated due to a maximum number of generations, a satisfactory solutions may or may not have been reached. Therefore, we'll this is nothing but genetic algorithm. Still, we will see these two videos, then you will understand what is meant by genetic algorithm. We'll see these two videos. हेलो दोस्तों, गेट्स क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में, और इस वीडियो में हम जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हु हैज हेलो दोस्तों, गेट्स क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में, और इस वीडियो में हम जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम? जॉन हॉलैंड। और उन्होंने जो आइडिया दिया वो क्या है? वो आइडिया पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्शन है किसका? रियल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। मतलब जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, कैसे दो पेरेंट मिलके एक न्यू चाइल्ड जो है वो क्रिएट करते हैं, एक न्यू चाइल्ड पैदा करते हैं और अपना बेस्ट जो है वो पास करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब वो जो नई जनरेशन है वो आगे मेट करेगी और वो आगे एक और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो पैदा करने की कोशिश करेगी। तो ये हो क्या रहा है? जीन्स जो है वो बेस्ट जीन्स जो है वो ट्रेवल हो रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में। इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है ये जेनेटिक एल्गोरिदम जो हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं, लेकिन उन सारे सॉल्यूशंस में से हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन
बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, बेस्ट सोल्यूशन को पैदा करना है। वो कैसे होगा? जब दो पेरेंट मिलके एक चाइल्ड को जनरेट करते हैं, हो सकता ऑब्वियसली उस चाइल्ड में पेरेंट के तो गुण आ ही गए और एक्स्ट्रा भी गुण उसमें आएंगे। अब वो जब वो एक नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेगा तो ऑब्वियसली उसमें और ज्यादा जो स्पेशल गुण आएंगे। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि इट इज मेनली फोकस ऑन द ऑप्टिमाइजेशन। मतलब यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर रहे। नॉर्मल एल्गोरिदम क्या करते हैं, वो एक इनपुट लेते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम ये वाला फंडा नहीं कर रहे, हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उन सारे सॉल्यूशंस में से हमें बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमाइज रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, हम सिंपल प्रॉब्लम्स को यूज नहीं करते। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम, जनरली जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम है, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कितनी होती है, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो उनके लिए प्रॉपर एल्गोरिदम जो है वो नॉर्मल एल्गोरिदम काम नहीं करते। तो उनके लिए हम यूज करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम, जहां पे हमारे पास सर्च स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब उसको बोल रहे हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस पॉपुलेशन में से, उन गिवन पॉपुलेशन में से हमें बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। यही मेन जो फंडा है किसका, जेनेटिक एल्गोरिदम का। और यही हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी सेम यही काम कर रहा है, उसी आइडिया के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जेनेटिक एल्गोरिदम बेस्ड है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द बेस्ट विल सर्वाइव। यही जैसे हम बायोलॉजिकल उसमें बोलते हैं कि इंडिविजुअल का यहाँ पे मतलब है क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स बेस्ट होंगे वही फिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी जो है आपने पढ़ी होगी, डार्विन ने दी थी, कि जो फिट है मतलब जो हमारे पास हजारों जीन्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल जो मोस्ट फिट है वही आगे जाके जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो वही जो पॉइंट है वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसके अंदर, जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर। इससे होगा क्या, हमारा जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज होता रहेगा। एवरी जनरेशन में हमारा रिजल्ट और ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज होता रहेगा। यही पूरी की पूरी कहानी है किसकी, जेनेटिक एल्गोरिथम की। और यहाँ पे हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, वही जैसे जीन्स है, क्रोमोसोम्स है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, जो टेक्निकल टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस पीपल, तो ये जो दो टर्म्स है बहुत सारी यूज होती हैं, दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है आपके पास जो सर्च स्पेस, जो सोल्यूशन स्पेस अवेलेबल है रियल लाइफ वर्ल्ड में, जिसका मतलब क्या है कि प्रॉपरली कोई रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन जब भी हम एल्गोरिदम को कोई इनपुट देते हैं, उसको इनपुट देने से पहले हमें प्रॉपर उसको एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब जब वही रिजल्ट, जब वही पूरा का पूरा सोल्यूशन स्पेस जब कंप्यूटेशन में आ जाता है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। दोनों चीजें हैं सेम ही, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप एक रॉ डेटा, एक रॉ सोल्यूशन है, उस रॉ सॉल्यूशंस को हम एनकोड कर रहे हैं जीनोटाइप में। मतलब जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर में रिप्रेजेंट करना, डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, रियल नंबर में रिप्रेजेंट करना, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बेसिकली जीनोटाइप। जिससे होता क्या है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है, क्योंकि अगर हम जितनी फाइन इनपुट देंगे उतना ही फाइन आउटपुट आएगा। अगर हमारी इनपुट ही नॉइसी होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं आएगा। तो ये बेसिक फंडा है जेनेटिक एल्गोरिदम का। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास सॉल्यूशंस जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की हमारे पास ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन। और इनिशियल पॉपुलेशन में जेनेटिक एल्गोरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपका एक पॉइंट के ऊपर या दो पॉइंट के ऊपर फोकस ना हो, आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स हो। जैसे कि हम बात करते हैं अगर एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल में अगर वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को फोकस करेंगे तो उनका जो सोल्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। वो इसीलिए सारे एज जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करते हैं, ताकि डाइवर्स, जितना हमारा इनपुट डाइवर्स होगा उतना ही हमारा एल्गोरिदम जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। फिर इनिशियल पॉपुलेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कैलकुलेट द फिटनेस। फिटनेस का फंडा क्या है कि जो हमारा इनपुट है उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर, जो मोस्ट स्टेबल आउटपुट दे रहा है, उसको हम बोलते हैं एक फिटनेस फंक्शन। जैसे कि अगर सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, हमारे पास 4 डिजिट का एक वर्ड है मेक। अब 4 डिजिट का एक वर्ड है मेक, मुझे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे पास लेट्स से
एक वर्ड है टेक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मेरे को ये मेक वर्ड को बनाना है, लेकिन मेरे पास जो वर्ड है वो क्या है, टेक। अब इस इनपुट का कितनी फिटनेस वैल्यू हो सकती है, ये आप कैसे निकाल सकते हो कि कितने वर्ड्स यहाँ पे मैच करते हैं, मेरे आउटपुट से कितना रेलेवेंट है। तो देखो ए भी यहाँ पे है, ए भी है, ई भी है, तो इसको आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसकी जो फिटनेस वैल्यू है क्या है, 3। ये अलग अलग मेथड्स है फाइंड आउट करने के, लेकिन अगर आपको एक मेथड भी आपके माइंड में आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फिटनेस का। ऐसी अगर हम बात करें, लेट्स से एक और वर्ड है मेरे पास ABCD। अब ABCD में देखो, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, नहीं है, सी है, नहीं है, डी है, नहीं है, तो इसकी फिटनेस वैल्यू क्या हो गई, 1। कि कितना ये आउटपुट के साथ रेलेवेंट है उसको हम बोलते हैं फिटनेस। तो फिटनेस वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, फिटनेस फंक्शन को, और उस फिटनेस फंक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं सिलेक्शन। यहां से हमारा स्टार्ट होता है जेनेटिक ऑपरेशंस। जेनेटिक ऑपरेशन में सबसे पहला फंडा क्या है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फिटनेस फंक्शन से। मतलब जितना आप ज्यादा फिटनेस फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन जो है वो बेटर होता जाएगा। मतलब हमने क्या करना है, बेस्ट पेरेंट को फाइंड आउट करना है। तो बेस्ट पेरेंट कौन होंगे, जिनका फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अब मैं ऑब्वियसली इसको कंसीडर नहीं करूंगा इन द सिलेक्शन, मैं इसको कंसीडर करूंगा टेक को। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेट्स से केक। तो ऑब्वियसली मैं केक में भी क्या है, देखो 1 2 3 तीन वर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो इसका भी फिटनेस क्या हो गया, 3। तो ऑब्वियसली मैं उन सारे वर्ड्स को, उन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा जिनकी फिटनेस वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। और इसमें हम जनरली 2 पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं और उनके थ्रू हम एक नई पॉपुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन जो है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉसओवर का फंडा क्या है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द क्रॉसओवर। जैसे कि हमारे पास एक मेथड है 1 पॉइंट का मतलब है, लेट्स से अगर हमारे पास वर्ड है ABCDE और दूसरे पेरेंट में है लेट्स से EFGHI, तो होता है क्या, 1 पॉइंट में हम एक रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से हमारा रैंडमली पॉइंट है ये वाला। अब 3 के बाद मतलब राइट साइड में इस लाइन के जितने भी वर्ड्स हैं हम उनको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, और उससे क्या होगा, एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया चाइल्ड जो है वो जनरेट होगा। वो क्या वैल्यू होगी, ABCHIEFGDE। तो देखो इन दोनों को, इस लाइन के बाद जितनी भी वैल्यूज है उनको हमने स्वैप कर दिया। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, मल्टी क्रॉसओवर मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है जिनको हम यूज करते हैं, जो नॉर्मल बायोलॉजी में भी यूज होते हैं, वही मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इससे होगा क्या, एक नई पॉपुलेशन जो है वो हम जनरेट करें। और इस पॉपुलेशन का फंडा क्या है, इसमें और ज्यादा फिटनेस वैल्यू हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा म्यूटेशन है, म्यूटेशन में भी हम जल्दी क्या कर रहे हैं, देयर आर अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन वैल्यूज, जहां पे हमारे पास आती है स्वैप है, हमारे पास बिट फ्लिप है, मतलब एक बिट को हम फ्लिप करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी आउटपुट आ रही है, जितनी भी पॉपुलेशन नई जनरेट हो रही है, वो पॉपुलेशन ऑब्वियसली पुरानी पॉपुलेशन से ज्यादा बेटर होनी चाहिए। अगर आप नई पॉपुलेशन जनरेट कर रहे हो और वो पॉपुलेशन आपको आउटपुट तक लेके ही नहीं जा रही, तो फिर उस पॉपुलेशन को जनरेट करने का फायदा ही क्या। मतलब आपने एक पॉपुलेशन जनरेट किया, उसमें एक वर्ड है, एक इंडिविजुअल है, लेट्स से EFGH। अब EFGH को आपने अपने आउटपुट के साथ कंपेयर किया, तो देखो कितने वर्ड मैच कर रहे हैं, एक, दैट्स इट। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी था, जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन थी उसमें ऑलरेडी हमारे पास फिटनेस वैल्यू 1 थी, 2 थी मैक्सिमम। तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू को जनरेट करना है, ऐसी पॉपुलेशन को जनरेट करना है बाय यूजिंग द क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, जिनकी फिटनेस वैल्यू पुरानी पॉपुलेशन से बेटर होनी चाहिए। और इस स्टेप को हम लगातार लगातार कंटिन्यूटी में रखते हैं, कब तक, जब तक हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं आता। स्टॉपिंग क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, एक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी फिटनेस वैल्यू हाईएस्ट आ रही है, मतलब आप ऐसी पॉपुलेशन जनरेट कर दी आपने कि जिसमें फिटनेस वैल्यू हाईएस्ट है, और ऑब्वियसली आप उस पॉइंट पे स्टॉप कर जाओ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो फाइनल आउटपुट वो क्या आनी चाहिए थी, मेक। और जो पॉपुलेशन हमारे पास म्यूटेशन और क्रॉसओवर के बाद आ रही है, उसमें क्या वर्ड्स आ रहे हैं, लेट्स से AKME,
ME, इस तरीके से वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखो इनकी जो फिटनेस वैल्यू क्या है 4, इसकी फिटनेस वैल्यू क्या है 4। मतलब आपने एक ऐसी पॉपुलेशन जनरेट कर दी, उस पॉपुलेशन में सारों की जो फिटनेस वैल्यू है वो क्या आ रही है 4 आ रही है। मतलब वो सारे के सारे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे मतलब हमारे को ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो हमें अगेन वापस जाना पड़ेगा, नई फिटनेस वैल्यू अगेन कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उस फिटनेस वैल्यू के बाद अगेन मेरे को बेस्ट पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगेन क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, और फिर हम इस स्टेप को जो है वो लूप में चलाते रहेंगे जब तक हम कन्वर्जन स्टेट पे नहीं आ जाते, मतलब हम एंड पॉइंट पे नहीं आ जाते। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ये सारे पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू। Okay, another video we'll see. दुनिया में आते ही हमें मिलने लगते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। काफी टाइम बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो रख रहा हूँ और शायद आपको पूरा चेंजेस देखना होगा सेटअप का। तो ये मेरा नया सेटअप है, नया पूरा लाइक स्टूडियो है। यहाँ पे अब इसी मेथड में या इसी एटमॉस्फेयर में आपको वीडियो में देखिए। काफी रिक्वेस्ट आई जेनेटिक एल्गोरिथम बनाने की, तो जेनेटिक एल्गोरिथम को मैं पूरा लाइक एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा एंड हम एग्जांपल भी देखेंगे उसके। बट जेनेटिक एल्गोरिथम एज नेम से ही लगता है बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल टॉपिक है तो थोड़ा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी बायोलॉजी नहीं, हम बायोलॉजी से कंप्यूटर साइंस दोनों को कनेक्ट करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम एज द नेम सेज जीन्स। अब जेनेटिक का मतलब बेसिकली सबको पता होता है जेनेटिक यानी क्या, कि ये चीज इसमें जेनेटिक है, यानी कि पहले से ही पेरेंट्स में से ये चीज जेनेटिक है, ये आदत से आई है, ऐसा हम कहते हैं जनरली। तो ये क्या है, वो आदत रिपीट हो रही है या फिर किसी और की फैमिली में आदत हो, जेनेटिकली रिपीट हुई हो। तो जेनेटिक एल्गोरिथम भी कुछ इसी तरह से हमारे कंप्यूटर साइंस में ऐसे बहुत सारे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैं जिनमें काफी टाइम लग जाता है। ये खास करके सर्चिंग में यूज किया जाता है, तो सर्चिंग में काफी टाइम लग जाता है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, तो वहां पे जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। अब ये एल्गोरिथम कोई इंटेलिजेंट एल्गोरिथम नहीं है, आई रिपीट, ये कोई इंटेलिजेंस एल्गोरिथम नहीं है, ना ही ये कोई स्मार्ट एल्गोरिथम है, लेकिन ये चेंजेस को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट कर लेता है, ये रिस्पॉन्सिव है चेंजेस को, यानी कि फटाफट चेंज कर लेता है, इसलिए इसको हम जेनेटिक एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, नाउ मान लो आप एक कंट्री के हेड हो और आपको एक काम करना है जिससे कि कंट्री को सुधारना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी पॉपुलेशन है, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, ये अपना कंट्री है और यहाँ पे इसको ये पॉपुलेशन है, ये लोग हैं। अब आपको कंट्री को आगे बढ़ाना है और जो बुरे लोग हैं उनको निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो फिल्टर करोगे लोगों में कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आपके पास एक तरफ गुड पीपल्स होंगे, एक तरफ बैड पीपल्स होंगे। नाउ आप एक बहुत गुड पीपल को कहोगे कि आपको पॉपुलेशन आगे बढ़ानी है, बैड पीपल पे एक रोक लगा दोगे, यानी कि नहीं। तो ये गुड पीपल क्या करेंगे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे एंड ग्रेजुअली एक दो जनरेशन चेंज होगी तो ये पूरा बैरियर हट जाएगा और सबके सब गुड पीपल्स हो जाएंगे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जेनेटिक एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं मानता हूं। तो हमने क्या किया था, जेनेटिक एल्गोरिथम मेनली ये स्टेप्स पे है, ये स्टेप्स से पूरा जेनेटिक एल्गोरिथम इस पे ही डिपेंडेंट है। हमने पहले तो क्या किया, स्टार्ट किया, दैट मींस ये हमारा पॉपुलेशन है, इनिशियलाइज किया। देन हमने एक सिलेक्शन किया, सिलेक्शन दैट मींस गुड पीपल एंड बैड पीपल, तो ये हमारा सिलेक्शन परफॉर्म।
बाद में वो सिलेक्टेड पीपल ने क्या किया, जनरेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन ये बायोलॉजी नहीं है, कंप्यूटर साइंस है, तो हम ये चीज एल्गोरिदम में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग वेरिएबल्स। हमें जो सर्चिंग अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे। क्रॉसओवर दैट मींस क्या होता है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में ये जो गुड पीपल थे, ये पॉपुलेशन था, कंप्यूटर साइंस में इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर साइंस में आपके पास जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो लोग है, जहां आपको सिलेक्ट करना है गुड पीपल एंड बैड पीपल, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। सेम ये बायोलॉजी का वर्ड ही लिया गया है, ये क्रोमोसोम्स है हमारे पास। ओके, ये क्रोमोसोम्स है। नाउ ये क्रोमोसोम्स सारे, दैट मींस ये गुड पीपल बैड पीपल सबके सब आ गए हमारे पॉपुलेशन के अंदर। ये हमारा पॉपुलेशन है। नाउ हमने क्या किया, आगे के एग्जांपल में क्रोमोसोम्स हमने सिलेक्ट कर लिए अकॉर्डिंग टू वो अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे भी हम क्रोमोसोम सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, फिटनेस। तो अकॉर्डिंग टू द फिटनेस ऑफ क्रोमोसोम हम सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे कई बार आपने यहाँ पे देखा होगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिटनेस फंक्शन। तो फिटनेस फंक्शन से हम सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मान लो मैंने क्रोमोसोम 1 यानी कि C1 एंड C2 सिलेक्ट किया। अब ये क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रोमोसोम में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बाइनरी नंबर्स होंगे। ओके, बायोलॉजी नहीं, बाइनरी। तो यहाँ पे 0010111 0011011 मान लो ऐसा है हमारे पास। तो हमने ये दोनों क्रोमोसोम को सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस। अब ये क्रोमोसोम्स जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमें। अब वो ऑपरेशंस कौन से होंगे, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे म्यूटेशन और क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं। नाउ ये मैंने क्रोमोसोम सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन गुड पीपल सब सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे वो साइड वो एग्जांपल में जनरेशन बढ़ाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एल्गोरिथम अप्लाई करना है, क्रॉसओवर करना है। क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि इनको मिला देना है और इनमें से कुछ एक्सचेंजेस परफॉर्म करेंगे। अगर मैं ऐसा कहूं कि 2 पॉइंट के बाद का मुझे क्रॉसओवर करना है, तो मैं सिंपली ये वैल्यूज और ये वैल्यूज को एक्सचेंज करूंगा। कंप्यूटर साइंस तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज करना है। अगर मैं 2 पॉइंट के बाद कहता हूं तो 2 पॉइंट दैट मींस ये 2 पॉइंट के बाद मुझे क्रॉसओवर परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे 1 और 1 इसका एक्सचेंज किया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है 0 है, तो एक्सचेंज करो तो 0 और यहाँ पे 1, ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी सेम है। और एग्जाम्पल है तो हम कुछ भी ले रहे हैं अभी। क्रॉस ओवर का मतलब यही होता है। अब क्रॉस ओवर हो गया। नाउ म्यूटेशन, म्यूटेशन दैट मींस क्या कि अभी वो जो अच्छे लोग बने हैं ना, तो अगर आप हेड हो तो आप चाहोगे कि उनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज और भी हो जो पहले कुछ लोगों में नहीं थी। तो वो अच्छी क्वालिटीज को हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। म्यूटेशन दैट मींस हम एक्स्ट्रा का ऐड करते हैं उसकी फिटनेस बढ़ाने के लिए। अभी जो फिटनेस थी वो तो ठीक, लेकिन उससे आगे बढ़ाने के लिए हम एक कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं। अब चेंजेस कहाँ परफॉर्म करेंगे, पूरे क्रोमोसोम को चेंज नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करेंगे, ये वैल्यू को। अब ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे एक और टर्म आती है सेल, ये जो है सिंगल सिंगल, इसको हम बोलते हैं सेल। तो ये सेल होता है, क्रोमोसोम है, और ये जो है बॉक्स, ये है हमारा पॉपुलेशन। Do you want to crack top tech companies interview? Well, Logic Mojo is here to help you crack interviews at Google, Amazon, Microsoft, Facebook, and any tech giant industry you dream to work with. Learn data structure, algorithms, problem-solving techniques with code explanation. Learn high-level and low-level system design problems, assignments for practice, and solution discussion. You can ask a query anytime,
and track your progress with weekly online coding tests. And finally, Job Assistance Program. For more information, log on to www.logicmojo.com. Innovations in cloud computing, blockchain, and IoT are creating a new future for businesses. Build software capabilities in these in-demand domains with India's #1 educational institution, IIT Madras. Introducing the Advanced Certification in Software Engineering for Cloud, Blockchain, and IoT, offered by IIT Madras in collaboration with Great Learning. Learn industry-relevant skills in the hottest domains with an industry-relevant curriculum taught by leading faculty at IIT Madras. Gain valuable industry insights with personalized live learning from top industry experts. Work on projects and gain cutting-edge skills, design software systems, and build innovative products and services. Power ahead with dedicated career support with resume reviews, interview preparation, and career guidance. Save your spot in the digital future and upskill with IIT Madras and Great Learning. Apply today. And spoke up slightly about 2 years. And So पॉपुलेशन, क्रोमोसोम एंड सेल में हम म्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। अब मैं यहाँ पे 0 है तो उसको 1 कर देता हूँ, ये मैंने म्यूटेट कर दिया। अब म्यूटेट करने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारा नया पॉपुलेशन है। नाउ ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, म्यूटेशन के बाद नया पॉपुलेशन बना, वापस से हो जाएगा, फिर सिलेक्शन से सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन। ये साइकिल तब तक रिपीट होगी जब तक इसकी कोई फॉल्स कंडीशन नहीं आती है। इसकी ट्रू कंडीशन यानी कि स्टॉप होने की जो ट्रू कंडीशन है वो नहीं आती है। तो अगर साइकिल 3 बार परफॉर्म करनी है तो थर्ड हो जाने के बाद फोर्थ जब आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर साइंस में हम करेंगे। सो ये जेनेटिक एल्गोरिथम कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस ओवर कर रहे हैं, देन म्यूटेशन कर रहे हैं। पॉपुलेशन, क्रोमोसोम एंड सेल का पहले यहाँ पे सेल लिया, सो इसको सेल नहीं कहते, इसको जीन कहते हैं। ये टर्म यूज नहीं होती है। सो क्या है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट तो यहाँ पे सेल निकल गया, तो इसको एक्चुअली जीन कहा जाता है। जहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं पढ़ोगे तो सो प्लीज करेक्ट दिस मिस्टेक एंड सॉरी फॉर दिस एंड बाकी सब सेम है। क्रोमोसोम, पॉपुलेशन एंड जीन, हम जीन पे ही म्यूटेशन करते हैं। सो प्लीज करेक्ट दिस। नाउ अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इसके कुछ स्टेप्स लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेटा सी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इनिशियलाइज द पॉपुलेशन टू प्रोटेक्ट। तो पहले स्टेप में हमने इनिशियलाइज कर लिया, बाद में क्या करेंगे, सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फिटनेस। थर्ड सिलेक्शन क्या किया, थर्ड क्या किया हमने, क्रॉस ओवर बिटवीन सिलेक्टेड क्रोमोसोम्स। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, परफॉर्म म्यूटेशन एंड repeat cycle till the condition is true, till the condition of stop true। जब तक कंडीशन खत्म होने की ट्रू नहीं है तब तक ये साइकिल को रिपीट करो। तो ये जो 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप पे पूरा जेनेटिक एल्गोरिथम डिपेंड है। नाउ अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एग्जांपल नहीं लेने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में यही स्टेप्स हम करेंगे और एक एग्जांपल लेंगे ताकि ये कांसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब मैंने ये वीडियो में थियरी जैसा कुछ नहीं लिया है, इसका सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है ये मैंने बता दिया है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और भी वीडियोस बनाऊंगा,
लेकिन इस वीडियो पे मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा जेनेटिक एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए और हमारे वीडियोस आगे भी देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। You've got the topic down. Let's get on to Okay, it. we will see now example. How did they do? Well, it's 5 hours. Read pages, searched 144 different keywords, and you still haven't found the line. After soaking, the blast is turned on. 30 minutes झाल्यानंतर after soaking, the blast is turned on. मिनिटच्या दुसरं start. Molten iron starts accumulating in heart. Liquid molten iron start accumulating in heart. Two small points are remaining. First one is the metal tapping and sliding. Tapping and sliding. आता टॅपिंग म्हणजे काय असतं, लिक्विड मोल्टन मेटल रिमूव्ह करतो आणि स्लॅगिंग म्हणजे लिक्विड मोल्टन मेटल जी काय राख तिथे थर आलेला आहे, रॉ मटेरियल बेस्ट मटेरियल काय आहे ते आपण रिमूव्ह करतो, स्लॅगिंग म्हणतो. ओके, टॅपिंग अँड स्लॅगिंग. राईट ऑफ टॅपिंग रिमूव्हिंग मोल्टन मेटल फ्रॉम people. People of the best purpose. Okay, we will see now example. It's just Removing molten metal from हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम के एग्जांपल के बारे में। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी जेनेटिक एल्गोरिथम, जिसमें मैंने जेनेटिक एल्गोरिथम का बेसिक ओवरव्यू दिया था। नाउ मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ जेनेटिक एल्गोरिथम के एग्जांपल्स की, जिसमें पहली वीडियो में एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे मैक्स1 एग्जांपल और दूसरी वीडियो में मैं नेपसेक के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम के 2 मेन एग्जांपल्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है मैक्स1 और दूसरा होता है नेपसेक। नेपसेक आपने एल्गोरिथम में ये टर्म सुना होगा, लेकिन जेनेटिक एल्गोरिथम में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेपसेक। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ना इस वीडियो में मैं मैक्स1 के बारे में डिस्कस करूंगा, मैक्स1 एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैक्स1 का एक जो पॉपुलर एग्जांपल है वही लेके मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सारी चीजें मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये पता है, ये स्टेप्स पता है जेनेटिक एल्गोरिथम में, लेकिन इस बार आपको ये कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। चेंजेस जैसे कि हाई लेवल पार्ट यहाँ पे कुछ ऐड किया है। ये हाई लेवल पार्ट क्या है? दैट मींस हम इनिशियलाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, म्यूटेट करते हैं और म्यूटेट करने के बाद जो हमें मिलता है उसका फिटनेस कैलकुलेशन वापस से यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है और उसपे से नया पॉपुलेशन जनरेट करते हैं। तो हमें पता है कि ये जो सीरीज है वो रिपीट होती रहती है, एग्जैक्टली रिपीट होती रहती है, लेकिन हर जनरेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कितना इम्प्रूव हुआ है। ना ये इम्प्रूव हुआ जो पार्ट है ना, वो मैं आपको मैक्स1 एग्जांपल में क्लियरली दिखा दूंगा कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। सो नाउ मैक्स1 एग्जांपल का लाइक क्वेश्चन देख लेते हैं। ना बेसिकली मैक्स1 का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक कॉइन है और इस कॉइन को मैं टॉस करता हूँ और मुझे चाहिए टेल्स। तो टेल्स मतलब मुझे चाहिए टेल्स, अगर हेड्स आता है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे टेल्स चाहिए। तो मैं 10 टाइम्स उसको टॉस करता हूँ। तो सपोज मान लो 10 टाइम्स में से मुझे कुछ रिजल्ट इस तरह से मिलते हैं। अब ये रिजल्ट का मतलब क्या? वो मुझे क्या चाहिए? टेल्स चाहिए। तो टेल्स मेरे लिए 1 होगा और हेड्स क्या होगा? 0। मुझे जो आउटपुट चाहिए वो 1 होगा, मुझे जो नहीं चाहिए वो 0 होगा। तो मुझे यहाँ पे कितनी बार मिला? 4 5 टाइम्स मुझे यहाँ पे टेल्स मिला और 5 टाइम्स हेड्स मिला।
ना मैं क्या चाहूंगा कि मुझे 10 टाइम्स मिले, मुझे 7 टाइम्स मिले, मैं मैक्सिमाइज करना चाहूंगा। तो मैक्स वन एग्जांपल, मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ वंस का मतलब, कहने का मतलब ये कि हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मैक्सिमाइज करना है। सो यहाँ पे मैक्सिमाइज हम किस तरह से करेंगे, तो जेनेटिक एल्गोरिथम का ही हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा ही एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स दी है। नोट्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। सो यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो पहला एग्जांपल यहाँ पे है, तो ये एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक कॉइन है और उसको हमने 10 टाइम्स मतलब टोटल 60 टाइम्स टॉस किया हुआ है और 60 टाइम्स को हमने डिवाइड कर दिया 10 टाइम्स में, हर 10 के स्लॉट्स में। सो होगा क्या यहाँ पे 1 बाय 1, जैसे कि S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। अब ये क्या है, S1, S2, ये मेरे 10 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स, तो उसको मैंने S1 दिया, दूसरे 10 टाइम्स S2, S3, S4 एंड S5, वो मैंने स्लॉट्स बना दिए। ओके, और आप इसको बोल सकते हो L। यहाँ पे मेरा 10 है और टोटल N 60 है। 60 टाइम्स मैंने टोटल किया हुआ है और L का 10, एक सेट मैंने बनाया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हर सेट को, यहाँ पे ये कॉमन एग्जांपल है, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। सो उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। शुभम गौरी, don't place roll number. If you have any question, any doubt, ask me directly. I think no one is asking questions. ओके, तो यहाँ पे 6 सेट्स है, जैसे कि इसमें 10 टाइम्स है, इसमें 10 टाइम्स, इसमें 10 टाइम्स और यहाँ पे, तो टोटल 60 टाइम्स मैंने किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो जहां पे 0 0 आ रहा है ना, मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है। सो सबसे पहला स्टेप हमने इनिशियलाइज कर लिया, यानी कि हमारे पास सेट्स अवेलेबल है। देन हम क्या करते हैं, फिटनेस कैलकुलेशन करते हैं। अब फिटनेस कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट कितना मिल रहा है हर सेट में, वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर f of s1 कितना मिल रहा है मुझे, f of s1, तो ये मुझे 7 मिल रहा है। अब ये 7 कैसे मिला मुझे, यहाँ पे जितने भी वंस है उसको कैलकुलेट कर लो। इसी तरह से f of s2 की कैलकुलेट करते हैं, तो f of s2 क्या होता है 5, f of s3 कितना होता है, तो ये भी अगेन 7, f of s4 तो होता है 4, f of s5 तो होता है 8 एंड f of s6 तो वो होता है 3। और यहाँ पे अगर देखो तो सबसे मतलब सबका फिटनेस कैलकुलेशन कर लिया। अब मुझे टोटल 60 टाइम्स में मुझे यहाँ पे टोटल फिटनेस कितना मिल रहा है, तो सबका हम प्लस करेंगे 7 7 14 19 23 23 31 एंड 34। सो ये 34 मतलब मेरा जो है फिटनेस है पूरे का। ओके, अब मुझे इसमें से सिलेक्ट करना है। नाउ अब सिलेक्शन परफॉर्म करना है, तो सिलेक्शन की मेथड आपने सुनी होगी, रोलेट व्हील मेथड। रोलेट व्हील मेथड मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने मूवी में देखा होगा, जैसे कि वो कसिनो वाला सीन आता है, उसमें कैसा एक जो मार्बल होता है वो फेंकते हैं और रेंडमली नंबर आता है हमारे सामने। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वहां पे किस तरह से प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पूरा रोलेट व्हील किस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से मतलब पूरा 1 से लेके 100 तक या इस तरह का रोलेट व्हील बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा रोलेट व्हील बना हुआ होगा, डिपेंड्स अपॉन आवर सिलेक्शन। सो हम रोलेट व्हील इसके लिए बनाते हैं, जैसे रोलेट व्हील को बोला जाता है कि रैंडम सिलेक्शन, लेकिन वो यहाँ पे रैंडम की तरह नहीं होता है, थोड़ा प्री डिफाइंड होता है। सो नाउ देखते हैं रोलेट व्हील बनाते हैं। सो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, बाकी रोलेट व्हील इसमें से ही बनेगा। नाउ अगर आप देखो तो हमें पता है सर्कल के कितना, सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। सो यहाँ पे मेरे पास कितने फंक्शन है, 6 फिटनेस फंक्शन है। अब 6 को मैं रोलेट व्हील में सेट कर देता हूं। अब 360 डिग्री मेरा जो है ना वो इक्वल टू 34 है, मतलब पूरा 360 डिग्री मतलब 34।
अब उसमें मैक्सिमम क्या है, F5 है। अगर आप इसका 34 में से 8 कितना होता है उसका परसेंटेज निकालते हो परसेंटेज वाले फॉर्मूला से, तो ये होता है हमारा कुछ 23% होता है। एंड देन ये हमारा 23% होता है। देन अगर बात करें f of S3 तो ये हमारा कुछ होता है 20% होता है, और ये भी अगेन 20% होता है। और बाकी के जो है 5 और 3 वो कम होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो 63% तो ये तीन ही कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे रोलेट व्हील में मैं ये चीज बना दूंगा। सो यहाँ पे इसको हम दे देते हैं S5 और इसको मैं दे देता हूँ S3 और इसको दे देता हूँ S1। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा कम लग रहा है तो इसको हम S2 दे देते हैं 5 वाला, और ये जो पार्ट है इसको मैं देता हूँ S3, S1 S3 S5 और ये S2। अब कौन रह जाता है, तो यहाँ पे S4 रह जाता है और S6 जो 4 और 3 है, तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से दे देते हैं। तो ये हो जाता है S4 और ये हो जाता है S6। ओके, तो ये हमारा रोलेट व्हील बन गया। अब सिंपल सी बात है, रोलेट व्हील घूमेगा तो हमें पता है कि मेजॉरिटी सिलेक्शन कहाँ पे आएगा। तो मेजॉरिटी सिलेक्शन चांसेस क्या होंगे कि यहाँ पे आएगा। अगर समझ लो कि यही 23%, अगर 50% होता तो चांसेस ज्यादातर यहाँ आते। ओके, अगर इसके प्रायोरिटी के बाद दूसरे की बात करें तो S3 और S1 की बात आती है तो वहां पे आ सकता है। सो यहाँ पे रोलेट व्हील में भी अगर मेजॉरिटी पार्ट हो जाता है ना, मेजॉरिटी पार्ट एक ही पोर्शन ले लेता है, तो हम मानते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि ये ज्यादातर यहाँ पे हमारा जो व्हील है यहाँ पे पॉइंट करेगा। सो सिलेक्शन करने में आसानी हो जाती है। तो हम सिलेक्शन में किस तरह से S5 को ले लेंगे, पहले S1 को ले सकते हैं, S3 को ले सकते हैं। ओके, डिपेंड्स अपॉन, सिलेक्शन तो हमें करना है लेकिन हम चाहेंगे कि हम सिलेक्शन भी ऐसा ही करें जो मैक्सिमम आ रहा हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन S5 का कर सकते हैं, हम S1 का कर सकते हैं, S3 का कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सिलेक्शन परफॉर्म करता हूं। सो यहाँ पे सिलेक्शन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देते हैं एक अच्छी फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा जो फिटनेस फंक्शन के हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, या फिर हाईएस्ट वाले ऊपर रख देते हैं, हाईएस्ट वाले। तो यहाँ पे मैं अगर S1 S3 को पहले रख देता हूँ तो S1 और S3 को पहले रख देते हैं। जैसे यही चीज को मैं अरेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे पहले आ जाता है मेरा S1 और उसके बाद आ जाता है S3 और उसके बाद आ जाता है S5 एंड देन आता है यहाँ पे S2 S4 and S6। ओके, इज इट राइट, S2 S4 and S6। तो मैंने इसको अरेंज कर दिया, यानी कि यही चीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आप बोलो कि 8 ऊपर आएगा, आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है S5 को, यहाँ पे चाहो तो ऊपर भी ले सकता हूँ। सो यहाँ पे इसको अरेंज करने के बाद अब हम इसको नए नाम दे देते हैं, नए नाम दे देते। तो यहाँ पे इसको मैंने अरेंज कर दिया है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी पहले तो वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि वो वैल्यूज जो थी, ओके, बेसिकली यहाँ पे जो S1 की वैल्यू क्या है, तो S1 की वैल्यू कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको मैंने वैल्यूज को, मतलब जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सो सिंपल वे में अब मैं क्या करूंगा, ये अरेंज किए हुए नंबर्स जो है, मतलब फिटनेस के हिसाब से अरेंज कर दिया है मैंने। तो अब इसको जो नाम, मैं नए नाम दे देता हूँ। जैसे ये S1 तो S1 ही है, लेकिन उसके बाद S3 है, तो हम याद रखने नहीं बैठेंगे। तो मैं सिंपली इसको नए नाम दे देता हूँ S1 डैश, और इसको नाम दे देता हूँ S2 डैश, फिर ये होगा हमारा S3 डैश, और ये होगा S4 डैश, और S5 डैश, एंड देन S6 डैश। सो ये परफॉर्म किया। अब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, S1 और S2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे S1, ये जो नए नाम है S1 डैश और S2 डैश, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्शन परफॉर्म करना है तो ये जो फिटनेस के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, तो उसमें मैं सबसे पहले वाले दो को सिलेक्ट करता हूं और S6 को सिलेक्ट कर लेता हूं। S3 S4 को मुझे नहीं करना है। तो S1 S2 को सिलेक्ट कर लिया।
तो S1 S2 को सिलेक्ट करते हैं तो होता क्या है यहाँ पे बेसिकली, अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, क्रॉसओवर। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉसओवर, अब ये मैंने एक पैर सिलेक्ट कर लिया, ये पैर सिलेक्ट कर लिया, तो अब इनके बीच में क्रॉसओवर होगा। इनके बीच में मतलब ये S1 और S2 के बीच में और S5 और S6 के बीच में क्रॉसओवर परफॉर्म होगा। क्रॉसओवर बहुत सारे होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि यहाँ पे होता है सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर, मल्टीपल पॉइंट क्रॉसओवर होता है। सो यहाँ पे S1 S2 का क्रॉसओवर किस तरह से होगा, तो यहाँ पे S1 S2 को पहले अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पे S1 और S2 का क्रॉसओवर, S1 डैश और S2 डैश, दैट मींस अब ये नाम भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने नए नाम दे दिए। तो S1 डैश एंड S2 डैश, तो S2 डैश का क्रॉसओवर करेंगे। ओके, अब क्रॉसओवर में मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट से क्रॉसओवर करता हूँ, मतलब यहाँ से क्रॉसओवर करता हूँ। सो होगा क्या कि ये जो दो पॉइंट है ना 1 1 1 1 ये सेम ही रहेंगे, लेकिन ये जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ का जो है 1 0 1 1 0 1 0 1 ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 1 0 1 0 1 0 1 वो नीचे आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो S1 डैश है और ये जो S2 डैश है, तो उसका क्रॉस ओवर करने के बाद एक नया नंबर मिलेगा जिसको हम नाम दे देते हैं S1 डबल डैश। तो यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, जैसा कि ये दो नंबर सेम रहे और बाकी का ये जो S2 डैश वाला नंबर है वो ऊपर आ गया, तो ये ऊपर आ गया। और S2 डबल डैश क्या हो जाएगा, S2 डबल डैश सेम हो जाएगा 1 1 और ऊपर इसका जो S1 डैश वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 1 0 1 0 1 0 1। ओके, S1 डबल डैश एंड S2 डबल डैश कुछ इस तरह से। नाउ हम परफॉर्म करेंगे S5 डैश और S6 डैश। तो S5 डैश क्या है, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 और S6 डैश है 1 1 1 0 1 के 4 times 1 and 0 1। और यहाँ पे S5 डबल डैश क्या आएगा, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट का किया है तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट का ही करना है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 5 पॉइंट्स तक भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स वाला एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, किस तरह से करते हैं यहाँ पे। सो 5 पॉइंट्स में यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 0 1 0 0 है, मतलब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद से क्रॉस ओवर परफॉर्म किया है, यहाँ पे ये 5 के बाद से क्रॉस ओवर किया है। ओके, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं प्रॉपर्ली इसके नीचे लिख देता हूँ, सो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, S6 डैश क्या है, 1 1 1 1 देन 1 1 1 1 0 1। अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स इसके मैंने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे 5 पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से मैं क्रॉस ओवर करूंगा। सो सेम नंबर S5 डबल डैश में ये पार्ट सेम रहेगा 0 1 0 0 और S6 डैश में ये पार्ट सेम रहेगा, मतलब ये S6 डैश का यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। क्रॉस ओवर ये पार्ट का होगा, मतलब ये जो है वो हम यहाँ पे S6 डबल डैश में लिख देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये S6 डैश वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब S5 डबल डैश में, तो 1 0 0 1 1। दैट मींस ये सिर्फ इंटरचेंज कर देना है, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। सो S5 डबल डैश, S6 डबल डैश, S1 डबल डैश एंड S2 डबल डैश। तो ये नया क्रोमोसोम हमें, मतलब नया पॉपुलेशन मिल रहा है। S3 डैश एंड S4 डैश को भी आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि अगर S3 डैश का मैं करता हूँ S5 के साथ या S4 के साथ, सो हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे S3 डैश एंड S4 डैश आप खुद कर लेना, मैं यहाँ पे सिंपली S3 डबल डैश और S4 डबल डैश डायरेक्ट बना के लिख दूंगा। और अगर ये मैंने किस तरह से किया हुआ है आपको चाहिए तो मैंने नोट्स में ये पूरा लिखा हुआ है। सो यहाँ पे अब मैं 1 by 1, अब क्रॉस ओवर हो चुका है, अब म्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ म्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए मैं सारे ये जो क्रॉसओवर के बाद वाले जो है इसको मैं अच्छे से लाइन में लिख देता हूँ। तो S1 डबल डैश, S2 डबल डैश, S3 डबल डैश, S4 डबल डैश, S5 डबल डैश एंड S6। ओके, S1 डबल डैश से S6 डबल डैश यहाँ पे किया हुआ है, क्रॉसओवर इसका हो चुका है। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे एक मिस्टेक है। S6 डैश जो है इसका जो 1 1 1 0 1 है वो यहाँ पे S5 में आएगा, सो क्रॉसओवर में मिस्टेक है 1 1 1 0 1। ओके, प्लीज करेक्ट दिस पार्ट। तो यहाँ पे S5 डबल डैश कुछ इस तरह से आएगा 1 1 1
0 1। ओके, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता है, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे। मैंने यहाँ पे रिपीट लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दिस। नाउ जैसा कि मैंने कहा S3 डबल डैश और S4 डबल डैश किस तरह से आया, तो S3 डबल डैश जो है उसका मैंने क्रॉस ओवर किसके साथ किया था, S3 डबल डैश का क्रॉस ओवर S3 डैश और S5 डैश, S3 डैश और S5 डैश का क्रॉस ओवर करेंगे तो हमें S3 डबल डैश मिलेगा। तो वो S3 डबल डैश मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम प्रोसेस है जैसे यहाँ पे S1 डैश और S2 डैश का किया है, इसी तरह से S3 डैश एंड S5 डैश का किया हुआ है, और आंसर जो आता है S3 डबल डैश उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और जो S4 डबल डैश है वो किस तरह से मिला है, तो S4 डैश और S2 डैश, तो S4 डैश की वैल्यू और S2 डैश की वैल्यू के साथ क्रॉस ओवर किया है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे S4 डबल डैश ले लिया है। सो ये मैंने प्रोसेस आपके लिए रखी है, आप खुद कर लेना। ये जो क्रॉसओवर्स किस तरह से किए उसको देख के तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आंसर ये आएगा S3 डबल डैश एंड S4 डबल डैश का। अब यहाँ तक आंसर आ जाता है हमारा, यहाँ तक कंप्लीट। नाउ क्रॉसओवर देख लिया, अब म्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। S1 डबल डैश, S2 डबल डैश, S3 डबल डैश, S4 डबल डैश और S5 S6, सो सबका म्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। नाउ म्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन मतलब हम ये जो पूरा जो S1 डबल डैश है ना, पूरे को चेंज नहीं करेंगे, उसकी पर्टिकुलर एक बिट को चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बिट सिलेक्ट की है, जैसे यहाँ पे S1 में ये बिट को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे ये दोनों को चेंज करूंगा, यहाँ पे ये दोनों को, और S4 S5 में कोई बिट चेंज नहीं करूंगा, S6 में यहाँ पे एक चेंज करूंगा। सो चेंजेस क्या होंगे, सिंपली 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलता है S1 का अगर हम चेंज करते हैं S1 डबल डैश, तो यहाँ पे मिलता है 111 0 डबल 1, और ये जो 1 है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे उसकी जगह पे 0 कर देंगे, देन 0 1 0 1। फिर यहाँ पे आता है S2 डबल डैश, तो इसको हम चेंज करते हैं, तो 4 टाइम्स 1 आ जाता है, 0 उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, देन 1 0 1 0 0। व्हाई, बिकॉज ये 1 है उसकी जगह पे हम 0 कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ मैंने कौन से बिट्स चेंज किए। ये बिट चेंज किया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 कर दिया, और ये 1 था तो 0। देन S3 डबल डैश की बात करते हैं, तो S3 डबल डैश में भी 2 बिट्स को चेंज करूंगा, 111 0 1, और ये 1 को चेंज करके 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 11 1 1। ओके, और ये 0 का मैंने 1 कर दिया। अंडरलाइन कर रहा हूं तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। S4 डबल डैश की बात करते हैं, तो S4 डबल डैश में कोई चेंजेस नहीं है, तो सेम इसको मैं इसी तरह से लिख देता हूं। और S5 डबल डैश की बात करें तो S5 डबल डैश भी इस तरह से लिख देता हूं, और S6 डबल डैश में मैं चेंजेस करूंगा सिर्फ एक बिट का, यानी कि ये 1 का 0 हो जाएगा, तो 111 0 11 0 0 0 1। ओके, अब आप बोलोगे इतना सब किया, इसका फायदा क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका फिटनेस कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका फिटनेस कैलकुलेट मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे अगर देखो 3 4 5 6 वंस है, इसका कितने है, तो 4 5 6 7 है, और यहाँ पे फिटनेस कैलकुलेट कितना है, तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 4 5 अगेन, और यहाँ पे कितना है 6। सबका प्लस करके देखो तो यहाँ पे कितना होता है 13 13 प्लस 8 21 26 31 एंड 37। सो फाइनल आंसर आया मेरा 37। अगर आप पुराना हमारा मतलब क्वेश्चन शुरू किया था तब का फिटनेस कैलकुलेशन कितना था, 34 था, और यहाँ पे इतना सब करने के बाद फिटनेस कैलकुलेशन कितना आया 37। मतलब हमारे जो नंबर ऑफ वंस है वो बढ़ गए। एग्जैक्टली हमारा मकसद तो यही था। मैक्स वन प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ वंस हमें बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे जो हाई लेवल पार्ट जो है ना, जिसको आप हाई लेवल बोलते थे, वो हाई लेवल में कुछ था नहीं, सिंपल था कि उसको इवेल्युएट करना है। मतलब यहाँ तक म्यूटेशन कर दिया, उसके बाद इवेल्युएट करो और नया जनरेट करो। नया जनरेट करो मतलब यही है, वो अभी नया जनरेट होकर यहाँ पे जाएगा और सेम प्रोसेस होगी। सिंपल है, ये बहुत ही इजी वे है मैक्स वन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और यहाँ पे 34 से 37 इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 9% का इंक्रीमेंट आया हुआ है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है। डिजायर्ड आउटपुट का मतलब क्या होता है, सपोज आपका टारगेट हो कि मेरे मैक्सिमम वंस जो है यहाँ पे 37 तक आप पहुंच गए, अगर आपका टारगेट 45 का है तो ये करते रहो, 45 तक पहुंच जाते हो तो खत्म। और अगर टारगेट नहीं, आपको मैक्सिमम चाहिए, लास्ट तक
तो भी इसको परफॉर्म करते रहो। हमें पता है मैक्सिमम मतलब 60 में से 60 ही आएंगे, लेकिन हम ये स्टेप से परफॉर्म करेंगे। आप बोलोगे कि ये तो बहुत लंबी मेथड है। लंबी मेथड कंप्यूटर के फॉर्मेट में नहीं है। वाई, ये जो है हमारे पास जो डेटा है उसी को लेके बार बार उसी में से इंक्रीमेंट करता है, तो ये कंप्यूटर के लिए लंबी नहीं है। इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही आसान होता है इंप्लीमेंट करना, प्लस कंप्यूटेशन में भी बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे मैक्स वन प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। नैपसैक प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में एग्जांपल देखेंगे, एंड देन उसको भी हम जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपने जेनेटिक एल्गोरिथम की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, एंड देन एग्जांपल वाली वीडियो देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी वीडियोस नए आते हैं और भी वीडियोस मैंने शुरू किए हैं आप फॉलो कर सकते हो, आपको वो वीडियोस भी काम आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। दुनिया में आते ही हमें मिलने लगते हैं सर्टिफिकेट्स। कुछ सर्टिफिकेट रोशन करते हैं नाम, तो कुछ दिलाते हैं आपको काम। जैसे गूगल करियर सर्टिफिकेट्स, सीखिए डेटा एनालिटिक्स, आईटी सपोर्ट, यूएक्स डिजाइन जैसे कई सारे फ्यूचर रेडी कोर्सेज। एनरोल करिए और बनिए जॉब grow.google/certificates. It's one of those great excuses to invite somebody to call. Okay, thank you very much. Now we will stop here. I have taken your attendance. Thank you. Thank you. Hello friends, welcome to Beats Machine.